Okay. Uh, yeah. So today we'll start with the last stanza of the song, Manasa Satatam. Okay. I'll just sing the last stanza and then uh, tell the meaning of the same, and then we'll go ahead. Okay. गहनारण्ये घनान्धकारे बन्धुजना ये स्थिता गह्वरे तत्र मया सञ्चरणीयं लोकहितं मम करणीयम्. ओके. सो गहन आरण्य, गहन इज अंधकार में, आरण्य अंधकार, अंधकार में, आरण्य में फिर घनांधकार, एकदम घना अंधकार जहाँ पे है वहां पे क्या, बंधुजना, जो मेरे बंधुजन है, जो हमारे बंधुजन, जो हमारे बंधुजन वहां पे है, उन ये स्थिता गहुवरे, हमारे जो बंधुजन स्थिता गहुवरे, कहीं तो अंधकार में है, उन बंधुजनों को मुझे ऊपर लाना है. ठीक है, उन बंधुजनों को मुझे ऊपर लाना है. तत्र मया संचरणीयम, वहां पे मुझे संचार करना है और उनको ऊपर लाना है. जो मेरे बंधुजन सारे, कहीं तो कोई तो अंधकार में है, कोई तो तकलीफ में है, उन्हें मुझे ऊपर लाना है. और क्या करना है, जैसे हम रोज कहते हैं, लोकहितम मम करणीयम. ठीक है, लोकहितं मम करणीयम. ठीक है. Once we'll sing the whole song. Okay, I have sent you the lyrics of all the three songs: Surasa Subodha, Lokahitam Mama Karaniyam, and Ekah Shugalah, और एकम द्वे पहले भेजा था. ठीक है. So I'll just sing the whole song once and then we'll go ahead. Okay, I have some interesting things to tell you also. Okay. मनसा सततं स्मरणीयं, वचसा सततं वदनीयं, लोकहितं मम करणीयं, लोकहितं मम करणीयम्. न भोगभवने रमणीयं, न च सुखशयने शयनीयम्, अहर्निशं जागरणीयम्, लोकहितं मम करणीयम्. न जातु दुःखं गणनीयं, न च निजसौख्यं मननीयं, कार्यक्षेत्रे त्वरणीयं, लोकहितं मम करणीयम्. दुःखसागरे त्वरणीयं, कष्टपर्वते चरणीयं, विपत्तिविपिने भ्रमणीयं, लोकहितं मम करणीयम्. गहनारण्ये घनान्धकारे बन्धुजना ये स्थिता गह्वरे तत्र मया सञ्चरणीयम्, लोकहितं मम करणीयम्, लोकहितं मम करणीयम्. Okay, so this is the way our song goes. Okay, and we are done with the whole song now. I hope you all have understood the meaning of the song. Okay, the gist of the song at least. Before starting with the topics today, I would like to share a few things. One of them is I would like to share a online dictionary. Okay, I'll just show you how does it work. Okay. Mm, just a minute. Fine. I'll just see if I open that. Yeah, it is. Okay. Yeah. So yes, I hope everyone can see this. Okay, so this is the site for this dictionary is spokensanskrit.org. Okay. What do we get here is whatever we want to, the word which we don't know, whether it may be a English word or a Sanskrit word, we can find it over here. Okay. So for example, if I type a banker over here, okay, and I
translate it, so I get the meaning, the words, the Sanskrit words for the same. Okay, adhikoshapatihi, adhikaushik, वार्धूषिक, ठीक है. These are the different words for banker. ठीक है. फिर okay, this way you can use this website. This is a very 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 useful website. Okay, for example, if I want to search a Sanskrit word but I am not able to type Sanskrit, I will type in Roman and then they will give me words. Okay. Okay, fine. So we'll type show lekhani. Okay, lekhani. Okay. So I get the Sanskrit word over here and I click on it and I get, okay, lekhani, pen. Okay. So this is the way we can use this dictionary. I hope this is useful for each and every one over here. Okay, fine. Now, one more thing before starting is, okay. One more thing is, yeah, about the Vedas. Okay, I wanted to share that. Day before yesterday, I attended a very interesting session on food and Vedas. So, how is food related to Vedas, or what all did we have during the Vedic times, during the ancient times? Okay, so the very first धान्य जिसे हम कहते हैं वो था जव जव जवस जिसे हम कहते हैं, बैरली. ओके, बार्ली समथिंग, या इट दैट वाज द वेरी फर्स्ट क्या धान्य जो हमें वैदिक टाइम्स में देखने को मिलता है. फिर उसकी बहुत सारी रेसिपीज है. एंड इंटरेस्टिंग थिंग, टू पॉइंट्स व्हाट व्हिच आई वुड लाइक टू शेयर देयर अबाउट that session is कि they had clarified butter what we use today, and they also had paneer, and they used to make all the fermentation और जो भी process हम अब करते हैं, all those things were done in Vedic period too. So this is what I found interesting in that lecture. Okay, so like rice was the second thing which they were the second thing which they used after barley. Okay, so these are the few things. Deepak ji, I don't know about idli etc, but then yes, rice was used a lot. Okay. Okay, fine. So we'll start with our today. Ma'am, sorry to interrupt. Idli came later, ma'am. Yeah, yeah, right. Idli came very Yeah, later. yeah, Yeah, thank you. yes. Okay, fine. So yeah, yesterday the reference material which we sent you had a few more topics where we will go to those topics also, but today we are going to see something about verbs again. Okay, fine. So yeah, now I think everyone is clear with the past tense one. If not, okay, I'll just tell you an idea to memorize it. गच्छति गच्छामि जो हम कहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या याद करना पड़ेगा. I'll just show you a window. Okay, fine, I can't show it to you now because okay. So in short, I'll just tell it to you कि whenever you want to यूज, जब आपको गच्छति कहना है, वो जा रहा है अगर कहना है, तो वहां पे आपको ती याद रखना है. अगर सह है, एक वचन है, तो ती बोलेंगे, ती का उपयोग करेंगे. गच्छति, खादति, पठति. ठीक है. अगर बहुवचन है तो अंति, गच्छन्ति, पठन्ति, लिखन्ति, खेलन्ति एक्सेट्रा. ओके, दिस इज व्हाट वी विल यूज. फिर अगर हमारे खुद के बारे में बात करनी है, एक वचन, सिर्फ मैं मेरे बारे में बात कर रही हूँ, तो हम क्या यूज करेंगे. मी, गच्छामि, पठामि, लिखामि, खादामि. ठीक है, इसका हम उपयोग करेंगे. और अगर मुझे इसका उपयोग करना है, बहुवचन, वयम, मेरे, हम सब, ऐसा अगर मुझे उपयोग करना है, तो आई विल ऑलवेज से मह. ठीक है.
मी मह, ठीक है, गच्छावः, अरे गच्छामः, पठामः, लिखामः, क्रीडामः, etc. Okay, I hope I'm clear about these things. Okay, I'll just see the doubts if there are any. Okay, fine, no questions till now. Okay, so आज हम देखेंगे भूतकाल, ठीक है. Now डोंट गेट टेंस्ड अबाउट दीज थिंग्स, क्योंकि ये सारी चीज़ें वी नीड टू सी नाउ. ओके, पर अगर एकदम समझ में नहीं आती तो दैट्स एब्सोल्युटली फाइन. ये धीरे धीरे समझ में आने वाली चीज़ें हैं थोड़ी सी. ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट टेंसेस, ओके, संस्कृत टेंसेस. सो okay, I'll read the dialogues over here and then we'll understand those. Okay. अध्यापकः, अद्य कः वासरः? राकेशः, अद्य सोमवासरः. आचार्यः, अध्यापकः, तर्हि रविवासरः कदा? कदा मतलब कब. विश्वासः, रविवासरः यः आसीत्. ठीक है, हमने देखा था कि अगर आज है तो अद्य, हो गया, कल था तो यह. ठीक है, यह रविवासरः. था को क्या कहेंगे हम? आसीत्. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे. ओके, फाइन. विद्यालयस्य अवकाश दिवसः. विद्यालयस्य अवकाश, हॉलिडे. हेलो सनिता जी. जी जी. थोड़ा इसको आप एक्सपेंड कर दीजिए. या मैक्सिमाइज आई कर दीजिए. जस्ट फॉरगॉट. यस अंशु. एंड थोड़ा सा बड़ा भी कर दीजिए साइज. इज दिस फाइन? या दैट वुड बी बेटर. Just a minute, huh? Okay, is this fine, Anshul ji? Yeah, that would be better. Yeah. Okay. Yeah. Mhm. I just forgot it today. That's it. Yeah. Okay. विश्वासः रविवासरः यः आसीत् विद्यालयस्य अवकाश दिवसः. ठीक है, विद्यालय का अवकाश दिवस. विद्यालय को तब छुट्टी रहती है. ठीक है. फिर अध्यापकः, आम यह अवकाशः आसीत्. अध्यापक कहते हैं हाँ आम, यह कल अवकाश था. अवकाश, छुट्टी थी. आसीत्. ठीक है. तर्हि, तो यह भवान किम किम कृतवान. तो कल क्या क्या किया आपने. ठीक है. प्रत्येकः, हर एक ने, किम किम कृतवान, क्या क्या किया, इति वदतु. ठीक है. तो विश्वासः, यह अहम मातुलगृहं गतवान. यह कल मैं मातुल, मामा के घर गया था. ठीक है, गतवान. फिर अविनाशः, आचार्य, यह आचार्य, यह कल मैं अहम लक्ष्मी नारायण सरोवरम. ठीक है, लक्ष्मी नारायण सरोवर को तरणाय, तैरने के लिए गया था. गतवान. ठीक है. प्रति रविवासरं गच्छामि, हर रविवार को जाता हूँ. ठीक है. कौशिकः, एतत् पश्यतु आचार्य, ये देखिए आचार्य, अहम एकम निसर्ग चित्रम लिखितवान. अहम एकम निसर्ग चित्रम, निसर्ग का चित्र मैंने बनाया है. लिखितवान. ठीक है. अध्यापकः, सुंदरमस्ति, सुंदर है. पश्यन्तु सर्वे, सब देखिए. कियत् सुंदरम रमणीयम च, कैसा, कितना सुंदर और रमणीय है ये चित्र. ठीक है. चित्रकारः भविष्यति एषः, यह तो चित्रकार बनेगा. राकेश, भवान किम कृतवान रविवासरे. राकेश, आपने क्या किया रविवार को. राकेशः, आचार्य, ह्यः मम अनारोग्यम आसीत्. कल मुझे ठीक नहीं था. अनारोग्यम, आरोग्यम, अनारोग्यम. ठीक है, कल मुझे ठीक नहीं था. आसीत्, उदर वेदना, उदरम इति पेट. ठीक है, स्टमक. उदर वेदना आसीत्, उदर वेदना थी. अतः वैद्यम प्रति गतवान, वैद्य के पास गया था. ठीक है. अजीर्ण कारणेन, इनडाइजेशन के कारणेन वेदना अस्ति. इति वैद्यः उक्तवान, वैद्य ने कहा अजीर्ण कारणेन, अजीर्ण, इनडाइजेशन के कारण वेदना है, पेट में दर्द है. ठीक है. अध्यापक, तर्हि किम औषधम खादितवान. फिर आपने क्या, या तो तर्हि किम औषधम खादितवान, तो आप क्या औषध खाई आपने. राकेशः, किमपि औषधम वैद्यः न दत्तवान. वैद्य ने कोई भी औषध नहीं दिया.
लंघनम करोतु, लंघनम मीन्स, ठीक है, टू स्किप द लंच और डिनर, ओके. लंघनम करोतु तथा च, गुड़, गुड़, घृत, घी, शुंठः, जिंजर का पाउडर, जिसको हम गुजराती में आई थिंक सूठ बोलते हैं, ठीक है. और मराठी में भी सुंठ कहते हैं, हिंदी में आई डोंट रिमेम्बर, ओके. सो शुंठी ही, ठीक है. इत्यस्य मिश्रणम, इत्यस्य मिश्रम, इन सबको मिक्स करके त्रिवारम खादतु, 3 बार खाइए, इति उक्तवान. वैद्य ने क्या कहा, लंघनम करो, तो स्किप करो, लंच या डिनर जो भी हो स्किप करो एक, और गुड़, घृत, शुंठी, ठीक है. गुड़, घृत, गुड़ जैगरी, घृत घी, और शुंठी जिंजर का पाउडर, इत्यस्य मिश्रणम त्रिवारम खादतु इति उक्तवान. अहम तथा कृतवान, मैंने वैसा किया. इदानीम आरोग्यम सम्यक अस्ति, अब मेरा आरोग्य बहुत अच्छा है, बहु सम्यक अस्ति, ठीक है. अध्यापक समीचीनमेव, अच्छा ही है. अस्तु, ठीक है, पुनर्मिलामः, फिर मिलेंगे, ठीक है. तो इस संवाद में हमने क्या देखा, सब कुछ कल के बारे में था. इट इज अबाउट पास्ट टेंस, ठीक है, भूतकाल के बारे में हम यहाँ पे सब कुछ देख रहे हैं, देखा हमने इस संवाद में, ठीक है. तो शुरुआत कहाँ से हुई, आज कौन सा वार है, ठीक है. तो आज सोमवार है आचार्य. तो फिर रविवार कब था, तो रविवार यह आसीत, कल था, ठीक है. तो आसीत किसके लिए हम यूज करते हैं, था, ठीक है, कल था, ठीक है. फिर कृतवान, क्या किया, ठीक है. करोती जो था उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे, कृतवान. फिर आपने क्या किया, ठीक है. फिर प्रत्येक किम किम कृतवान, हर एक ने क्या क्या किया. फिर गतवान, जाना, गच्छति का क्या हो गया, भूतकाल, गतवान, ठीक है. फिर लिखितवान, लिखना या ड्रॉ करना, उसका क्या हुआ, लिखितवान, ठीक है. वैसे ही कृतवान हमने देखा. फिर उक्तवान, कहना, ठीक है, कहना, वदती का क्या हो गया, उक्तवान, ठीक है. फिर खादती का क्या हुआ, खादितवान, क्या खाया, कौन सी औषध खाई थी, ठीक है. दत्तवान, ददाती का क्या हुआ, दत्तवान, ठीक है. तो इस प्रकार हमने ये जो भूतकाल के रूप हमने देखे. अब 2 थिंग्स टू नोट हियर, दो चीज़ों का, 2 बातों का हमें यहाँ पे ज़्यादा ध्यान रखना है कि एक तो खादितवान, दत्तवान, कृतवान, उक्तवान, लिखितवान इत्यादि, ये जो सारे शब्द है, ठीक है, ये भूतकाल रूपी है, पर ये पुल्लिंग के लिए अलग है और स्त्रीलिंग के लिए थोड़े से अलग है, ठीक है. तो वो हम थोड़ा सा आगे जाके देखेंगे. और ये जो सारे रूप है, ये क्या है, एक वचन, क्या है, एक वचन. हम एक वचन के लिए ही ये रूपों का उपयोग करते हैं, ठीक है. ओके, हम थोड़ा सा आगे जाएंगे और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे. आई थिंक इट विल बी क्लियर. एषः बालकः अस्ति, ठीक है. यह बालक है, ठीक है. फिर उसके सामने क्या है, पूर्वम एषः शिशुः आसीत्, पहले ये क्या था, छोटा बच्चा था, शिशु था, आसीत्, ठीक है. युवकाः क्या है, बहुवचन है, युवकाः सन्ति, ठीक है. फिर क्या है, युवकाः आसन्, युवकाः आसन्, ठीक है. अगर मुझे सन्ति का भूतकाल में अगर ये करना है तो मैं क्या कहूंगी, बहुवचन है सन्ति, अस्ति और सन्ति, वैसे सन्ति का क्या हो जाएगा, आसन, ठीक है, आसन, ठीक है. एकदम प्रैक्टिकल अगर उपयोग करना नहीं आया तो डू नॉट वरी फॉर नाउ, ओके, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन. फिर एषः युवकः अस्ति, पूर्वम, पहले, एषः बालकः आसीत्, पहले यह बालक था, ओके. फिर एषा युवती अस्ति, यह युवती है. पूर्वम एषा बालिका आसीत्, पहले यह क्या थी, पहले यह बालिका थी, ठीक है. जैसे ही एषा वृद्धा अस्ति, ठीक है, यह वृद्धा है. पूर्वम, पहले, यह युवती थी, ओके, ठीक है. पूर्वम एषा युवती आसीत्, ठीक है. फिर
अहम, मैं, युवती अस्मि। ठीक है, अब तक हमने तीसरे इंसान के बारे में बात की, तो हमने अस्ति और आसीत का उपयोग किया, ठीक है, एक वचन के लिए। अब जब मैं मेरे बारे में, खुद के बारे में, या अगर आप अपने बारे में बात करते हैं, तो यू विल ऑलवेज से अहम युवती अस्मि। ठीक है, और पूर्वम अहम बालिका आसम। ठीक है, आसम, हाँ, अस्मि आसम, अस्ति आसीत, संति आसन। ठीक है, अब इनको याद कैसे करेंगे हम? थोड़ा सा एक ट्रिक संति के लिए है। संति जो है वो बहुवचन है, उसका भूतकाल का बहुवचन रूप क्या है? आसन। आसन क्या होता है? जिसपे हम बैठते हैं। ठीक है, आसन। समझ आया? ऐसे कुछ तो कुछ भी कहीं से भी ट्रिक लगा के जैसे हमें याद रहता है वैसे हम याद करने की से कोशिश करेंगे। ओके फाइन। ठीक है, अस्थि का आसीत, अस्थि आसीत 5 टाइम्स अपने आप बोलिए ये। ठीक है, डोंट अनम्यूट योर माइक, लेट योर माइक्स बी ऑन म्यूट एंड जस्ट ट्राई अस्थि आसीत, या फिर जस्ट एक्ट अस्थि आसीत। ठीक है, और अस्मि आसम, अस्मि आसम, युवती अस्मि बालिका आसम, युवती अस्मि बालिका आसम। यहाँ पे पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों एक ही रहेंगे। ठीक है, अगर लड़का हो अहम युवकः अस्मि, पूर्वम अहम बालकः आसम, ये सेम ही रहेगा। ओके, डोंट कंफ्यूज योरसेल्व्स। ओके, ठीक है, fine. I hope this is clear. Are there any doubts? If there are any doubts, please write it in the chat box. I am reading the chat box. Okay, fine. Okay, so एक छोटा सा टेबल देख लेते हैं हम लोग कि हाँ, प्रथम पुरुष लट लकार, लट लकार इज प्रेजेंट टेंस। ओके, आप लकार से अपने आप को कंफ्यूज मत कीजिए, हम वर्तमान काल ही बोलेंगे इसे, वर्तमान काल। ठीक है, और एक वचन क्या है उसका? अस्ति, बालक अस्ति। बहुवचन क्या है? संति। ठीक है, बालकाः संति। ठीक है, आसीत, लंग लकार इज समथिंग भूतकाल। ठीक है, आसीत आसन। ठीक है, आसीत आसन। ओके, फिर है लट लकार में अस्मि और स्मः। ठीक है, मैं हूँ, अहम अस्मि, वयम स्मः, हम सब है। ओके, और आसम, अहम बालिका आसम। ठीक है, वयम बालिकाः आस्म। ओके, यहाँ पे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में कोई भी भेद नहीं है। भेद कहाँ पे है वो मैं आपको बताती हूँ। जी ललिता जी, बहुवचन यस यस, स्त्रीलिंग हो तो भी पास्ट आसन ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एक टेबल है, जब भी हम अस्ति या भवती, ठीक है, इन ऐसे जो धातु है, ये जो रूट्स है, वर्ब रूट्स है, जब भी हम इनका उपयोग करेंगे तभी तब ना वहाँ पे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में कोई भी अंतर नहीं है, फर्क नहीं है, या फिर उसके क्रियापदों के उपयोग में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, बालक है तो भी अस्ति है, आसित है, बालिका है तो भी अस्ति आसित अस्मि आसम, ये ही है सारा। ओके, ठीक है, थोड़ा सा आगे जाए। अगर बहुत ज्यादा आए जो जस्ट अगर लगे कि we need to take a small break of 5 minutes and so we'll take a song or something and we'll relax a bit. Okay, बहुत ज्यादा अगर हो जाए तो ओके, डोंट वरी, रिलैक्स। ठीक है, थोड़े से हम सेंटेंसेस देख लेंगे वर्तमान काल में और भूतकाल में। ओके, वर्तमान काले। ठीक है, वर्तमान काल में सप्तमी विभक्ति। ओके, ऑलवेज ट्राई टू रिमेम्बर दीज थिंग्स। और भूतकाले। ओके, फिर एषः बालकः अस्ति, एषः बालकः आसीत्। ठीक है, फिर सः उपवनं गार्डन उद्यान गच्छति, सः उपवनं गच्छति, सः उपवनं गतवान। ठीक है, गच्छति का क्या हुआ? गतवान। ठीक है, तस्य स्नेहितः अपि सन्ति, उसके स्नेहित भी है जो उन पे स्नेह करते हैं। तस्य स्नेहिताः अपि आसन्। ठीक है, थे। ओके, एक साइड वर्तमान काल में है, दिखता है, ठीक है, पढ़ता है, गाता है, गाती है। ठीक है, और दूसरे साइड भूतकाल में क्या है? था, पढ़ती थी, पढ़ता था, गाती थी, प्राप्त हुआ था, इत्यादि। ओके, फिर उपवने एकम वानरम, उपवने ते एकम वानरम पश्यन्ति।
उपवने ते एकम वानरम दृष्टवन्तः. ठीक है, यहाँ पे भी एकम ही आएगा, एकह नहीं आएगा. ओके फाइन. नेक्स्ट इज सह वानरः पिपासितः. पिपासितः आई थिंक ऑल ऑफ यू नो नाउ. पिपासितः थर्स्टी, प्यासा था. ओके एंड सह वानरः पिपासितः आसीत्. ठीक है, था. एका बालिका अस्ति, एका बालिका आसीत्. ठीक है, सा. सा मतलब स्त्रीलिंग. हाँ, सा बालकेंद्रे, बालकेंद्र में संस्कृतम पठति, संस्कृत पढ़ती है. सा बालकेंद्रे संस्कृतम पठितवती. ओके, दिस इज स्त्रीलिंग. ओके, स्त्रीलिंग एक वचन. पठितवती. ठीक है, सा मधुरम गायति, वो मधुर गाती है. सा मधुरम गीतवती. सा मधुरम गीतवती, उसने वो मधुर गाती थी. ठीक है, पुल्लिंग होता तो क्या होगा, गीतवान. ठीक है, और एक चीज ऊपर थी, उपवने ते एकम वानरम दृष्टवन्तः. ठीक है, दृष्टवन्तः ते है ना, सह और ते बहुवचन हो गया, इसलिए दृष्टवन्तः वो क्या है, पुल्लिंग के लिए बहुवचन है. ओके, is there any confusion regarding these things? ओके हम आगे के सेंटेंसेस देखते हैं. सा प्रतियोगितायां, प्रतियोगिता में पुरस्कारम प्राप्नोति, उसको वह प्रतियोगिता में पुरस्कार को प्राप्त करती है. ठीक है, सा प्रतियोगितायां पुरस्कारम प्राप्तवती. ठीक है, उसको प्राप्त हुआ था. ओके, फिर है सा प्रसन्ना भवती, वो प्रसन्न होती है. सा प्रसन्ना अभवत, वो प्रसन्न हुई थी. ठीक है, अगर यहाँ पे लड़का हो सह प्रसन्न भवती, तो उसका भी सह प्रसन्न अभवत ऐसे ही आएगा. ठीक है, फिर त्वम भारत मातुः गीतम गायसी, तुम भारत माता का गीत गा रहे हो. ठीक है, तो उसका भी क्या आ जाएगा. ठीक है, गायत्री कर देंगे हम. ओके, सो इट विल बी मोर इजी टू अंडरस्टैंड. ओके, त्वम भारत मातुः गीतम गीतवान. ठीक है, आपने तुमने भारत माता का गीत गाया था. ओके, सो दिस इज व्हाट इज भूतकाल. ठीक है, पुल्लिंग में भी और स्त्रीलिंग में भी हमने देखा. ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे जाएंगे. ठीक है, और हम एक कथा देखेंगे. ओके, बाय द टाइम इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग पठितवान पठितवती, प्लीज आस्क. आफ्टर दैट we'll see one more thing related to bhutakal. Okay, I see no questions over here. Fine, I hope everyone is clear with it then. Okay, so जैसे हमने देखा पठितवान पठितवती इत्यादि जो हमने देखा अभी, वैसे ही उससे भी एक आसान तरीका जो है वो इस स्टोरी में है. I'll just read the story once and let you know. ठीक है, so the most important thing here is, ठीक है, सिलेक्टिव रीडिंग करेंगे हम लोग. ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ आई एम गोइंग टू रीड होल, उसके बाद हम सिलेक्टिव रीडिंग करने वाले हैं. तो आई रीड एंड आफ्टर दैट आई एक्सप्लेन यू. ठीक है, बालकृष्णः गोकुले गोपालनं करोति स्म. ठीक है, प्रतिदिनं सः वयस्यैः सह वनं गच्छति स्म. गोकुलस्थाः बालगोपालाः वासुदेवेन सह आयासं हिंडन्ति स्म. मध्याह्ने ते सर्वे स्वगृहेभ्यः आनीतानि खाद्यवस्तूनि एकत्र उपविश्य खादन्ति स्म. ओके, तो okay, Dharmanshu, I'll just answer your question in a minute. Okay,
बालकृष्ण गोकुल बालकृष्ण जी जो थे वो गोकुल में गोपालन करते थे, ठीक है। हर दिन प्रतिदिन हर दिन सह वयस्यैहि सह, वो वयस्यैहि जो अपने वय के जो उसके जो मित्र थे, वयस्यैहि मतलब हम फ्रेंड्स भी कह सकते हैं, उसका समान वय है इसलिए उसको हम वयस्यैहि सह वनम गच्छति स्म, वो अपने मित्रों के साथ वन को जाते थे। गोकुलस्थाः बालगोपालाः, ठीक है, गोकुल के बाल गोपाल जो सारे भी थे वो वासुदेवेन सह, वो बालकृष्ण श्री कृष्ण के साथ आयासम हिंडन्ते स्म, वो हमेशा हिंडन्ते स्म मतलब घूमते थे फिरते थे, ठीक है। मध्याह्ने दोपहर को ते सर्वे, वो सब स्वगृहेभ्य अपने घर से आनीतानी लाए हुए खाद्य वस्तूनि, खाने की चीजें एकत्र उपविश्य एक साथ बैठकर खाते थे, ठीक है। तो जैसे हमने पठितवान पठितवती कृतवान खादितवान गतवान गतवती जो हम अभी देख रहे थे, वैसे ही करोति और स्म सबसे इजी है भूतकाल का फॉर्म। आप कोई भी धातु के वहां पे लास्ट में स्म लगा दीजिए, ठीक है। करोति करता था, अगर स्म लगाते हो तो उसका भूतकाल हो जाता है। दिस इज द इजीएस्ट वे टू यूज भूतकाल, ओके। अगर आपको पठितवान पठितवती अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो यू कैन डायरेक्टली यूज करोति स्म। हिंडनते, हिंडनते मतलब घूमना, और वो हिंडनते क्यों है उसका रीजन अलग है, इट इज अ बिट ग्रामेटिकल पार्ट, इसलिए मैं वहां पे नहीं जा रही हूँ। गच्छति स्म जाता था, खादंती स्म एक साथ खाते थे। अगर वो एक वचन हो तो भी आप स्म लगाओगे, बहुवचन हो तो भी आप स्म लगाओगे। अगर हमारे बारे में खुद के बारे में है, उत्तम पुरुष संस्कृत में जिसे हम कहते हैं, वहां पे भी हम खादामी स्म खादामह स्म, तो भी दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, ओके। फिर नीचे का पैराग्राफ नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उसमें जो में जो ब्लू फॉन्ट में है वो सारे उपाविशन अपृच्छत अवदत अवदन अवदत, ठीक है। ये जो सारे रूप है वो है भूतकाल का एक प्रॉपर लकार है, ठीक है, एक प्रॉपर टाइप है, ठीक है। जो हमने अब तक दो देखे, करोति स्म और पठितवान या पठितवती इत्यादि, ये उसके पर्याय है, जैसे हमने विभक्तियों के लिए देखे थे। उपाविशन अपृच्छत इत्यादि जो सारे है, यह जो सारे है ये सारे भी हमारे लंग लकार है, जिसे हम भूतकाल का एक टाइप कहते हैं संस्कृत में, ठीक है। तो ये सिर्फ जानकारी के लिए था कि अगर आप कभी भी कोई काव्य देखते हैं, अभी आफ्टर दिस कोर्स कोई काव्य देखते हैं, या फिर कोई अगर आप श्रीमद् भागवत भी देखते हैं, या फिर आप श्रीमद् भगवत गीता भी देखते हैं ना, फिर भी आपको ऐसे शब्द कहीं ना कहीं ये जो धातु है, ये जो क्रियापद के रूप है, ये आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे ही। हमें समझ जाना है कि these are past tense, okay, past tense forms, okay. I hope I am clear with this, okay. Now Dharmanshu ji, I'll answer your questions, okay. Okay, fine. So every word ending with vati presents past tense, no, it's not so. फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने सौभाग्यवती कहा है, तो जैसे हम किसी पुरुष को अगर या किसी लड़के को, बच्चे को, बालक को आशीर्वाद देते हैं तो इसे आयुष्मान भव कहते हैं, ठीक है। वैसे ही अगर हम किसी लड़की को, बालिका को, स्त्री को आशीर्वाद देते हैं तो सौभाग्यवती या आयुष्मती भव कहते हैं, ठीक है। अगर वो अनमैरिड हो तो वी टेल हर आयुष्मती, वो स्त्रीलिंग का रूप हो जाता है वती लगाने से, ठीक है। आयुष्मती, फिर आयुष्मान, आयुष्मती, ठीक है, ये स्त्रीलिंग हो जाता है। वती हमेशा ही पास्ट टेंस नहीं होता है। जब हम उसे क्रिया के साथ, क्रियापद के साथ लगाते हैं तो वो ये हो जाता है, पास्ट टेंस हो जाता है। बट उसके लिए भी देयर आर सम ग्रामेटिकल थिंग्स टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन विच वी आर नॉट गोइंग टू सी नाउ। बट येस, सौभाग्यवती इज नॉट अ पास्ट टेंस थिंग, ओके। धन्यवाद। जी धन्यवाद। हाँ, सो हमने अभी पास्ट
टेंस देखा. आई होप ऑल ऑफ यू आर अ बिट क्लियर. 25% तो क्लियर है ही सब. आई होप सो. ओके. If there are any questions, please post. Okay, today. हाँ, okay, fine. So, okay. So आपको नीचे जो यह एक टेबल दिख रहा है, चार्ट. ओके. सो व्हाट इज दिस एक्चुअली? ये सारे क्या है? ये सारे हैं क्रियापद के अलग अलग रूप है. ठीक है. जैसे गच्छति वाला जो पूरा एक लाइन है, दैट इज प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल है. गमिष्यति जो है, जो अभी हम देखेंगे, गमिष्यति क्या है? वो है भविष्य काल. ठीक है. फिर गच्छतु जो हमने देखा था पहले, लोट लकार. गच्छतु, पठतु, पततु, क्रीडतु, वदतु, पिबतु, लिखतु, नयतु इत्यादि. ये जो सारे हैं वो लोट लकार है आज्ञा के अर्थ में. जाओ, करो, दो, गिरो, खेलो इत्यादि. फिर गतवान जो हमने देखा था अभी, जस्ट अभी देखा. गतवान पुल्लिंग के लिए गतवान, पठितवान, पतितवान, क्रीडितवान इत्यादि. ठीक है. और फर्स्ट जो थ्री, ये जो आपको ये दिख रहे हैं लाइंस. ठीक है. ये गच्छति, गमिष्यति वाला पूरा और गच्छतु, इसके लिए स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कोई भी बंधन नहीं है. स्त्रीलिंग और पुल्लिंग हो तो भी हम वहाँ पे ये ही गच्छति, सा बालिका गच्छति, सह बालकः गच्छति, ये ही आएगा. गमिष्यति के लिए भी यही होगा. गच्छतु के लिए भी हम ऐसे ही उसको उपयोग करेंगे. दोनों भी लिंगों में समान है. गतवान जैसे मैंने कहा अलग है थोड़ा सा. गतवान और स्त्रीलिंग में गतवती है. ठीक है. और उसका बहुवचन गतवत्यः है. ठीक है. हम वो नहीं देखेंगे, डोंट वरी, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा एंड आई डोंट वांट टू डू दैट. ओके, फाइन. फिर अगर easiest way to say a sentence in भूतकाल is, भूतकाल में एकदम आसान तरीके से अगर हमें कोई वाक्य कहना है तो हम क्या कहेंगे? गच्छति स्म, पठति स्म, पतति स्म. पतति मतलब गिरना. पतति स्म, क्रीडति स्म, वदति स्म, पिबति स्म, लिखति स्म इत्यादि. ओके. आई होप दिस इज क्लियर. yes, is it clear? Fine. Okay, so this is the list of those dhatus. I'll be mailing it to you today. Okay, I will just see if you don't know any of the dhatus. Okay, fine. Likhati is likhna, nayati is लेकर जाना. ठीक है. अपने साथ लेकर जाना. हाँ. पश्यति is देखना. पृच्छति is to ask. I'll write the meanings also so that all of you will be clear. भवति is to be, होना. मिलति मिलना. त्यजति त्याग करना. त्यागना. खादति खाना. जानति is जानना. करोति करना. शृणोति सुनना. ददाति देना. प्रेषयति भेजना. प्रक्षालयति, अहम वस्त्रं प्रक्षालयामि. धोना, वस्त्र धोना. फिर है उत्तिष्ठति, उठना. उपविशति, बैठना. स्थापयति, रखना. स्मरति, स्मरण करना. ओके, सो आई होप यू ऑल मस्ट बी क्लियर विद ऑल दीज थिंग्स नाउ. थोड़ा सा तो ठीक है. Fine. So with this, I would like to tell you. I don't remember the whole shloka actually, but I'll just tell you the meaning. जब भी हम, और वो आज के लिए रिलेवेंट भी है. ओके. सो जब भी हम कोई श्लोक पढ़ते हैं, मतलब हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, नॉट ओनली संस्कृत, कोई भी दूसरा सब्जेक्ट भी अगर हम पढ़ते हैं, तो व्हाट हैपेंस इज कि जब पढ़ते हैं तब 100% समझ में आता है, ऐसा कभी नहीं होता. ठीक है. उसको, उस 100 को ना 25 में डिवाइड किया है. तो पहला 25% जो होता है ना, वो जब गुरु पढ़ाते हैं ना, टीचर पढ़ाते हैं, तब हमें समझ में आता है. कितना? ओनली 25%. ओके. सो आई डोंट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम एनीवन कि 100% समझ में आया या नहीं. ओके. सो आई डोंट एक्सपेक्ट इट. आई नो 25% जब टीचर पढ़ाते हैं तब समझ में आता है. नेक्स्ट 25% जब हम उसके बारे में सोचते हैं, ठीक है, तब हमें समझ में आता है, उसका चिंतन करते हैं. अच्छा, तो गच्छति है, तो उसके बाद उसका गच्छन्ति है. अच्छा, तो एकदम ही क्लिक होता है. अच्छा, ऐसा है, जो हमें एकदम कभी अचानक से क्लिक होता है.
उसके बाद का 25% जो है वो हम उसको रिवाइज करते हैं, उस चीज़ को हम एक बार वापस रिवाइज करते हैं हाथ में लेके कि हाँ अच्छा ये ऐसा था, तब हमें बाकी 25% समझ में आता है। तो उसका क्या हो जाता है, 75% हो गया। और लास्ट जो 25% है उसके लिए कहा गया है पादः कालेन पच्यति, ठीक है। पादः जो और रह गया है 25%, वो कब हमें समझ में आता है, कालेन पच्यति, बहुत सालों बाद, जब आप में से कोई तो कुछ पढ़ा रहा है, आपने अगर साइंस किया है तो साइंस, इंजीनियरिंग या संस्कृत या लैंग्वेजेस एनीथिंग पढ़ा रहा है, अच्छा माय टीचर टोल्ड मी दिस, ओके, तो उन्हें तब ये कहना था, पादः कालेन पच्यते, आराम से एकदम। तो 75% एकदम रिसेंट होता है कि हाँ कुछ दिनों में समझ में आ सकता है, पर बाकी के 25% हमें आराम से पादः कालेन पच्यते उस टाइम पे समझ में आता है, जब हम उसका कुछ तो प्रैक्टिकल, उसका कुछ तो उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। या यस जेलम जी, एब्सोल्युटली राइट। यस यू हैड अ टेबल, मैंने वो टेबल के बारे में इसीलिए नहीं कहा क्योंकि उसमें अब सब कुछ था, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ठीक है। वो कैसे था, प्रथम पुरुष में क्या था, अ, अ, तीतः अंति, मध्यम पुरुष में सीथः थ, और उत्तम पुरुष में मी वह मह, ठीक है। ऐसे आप पढ़ते थे, ठीक है। और हाँ इस तरह से आप पढ़ते थे। सो दिस इज द टेबल जिससे हम याद कर सकते हैं, लेकिन वो एक तो हर चीज़ में अप्लाई नहीं होता स्पोकन संस्कृत में, इसलिए मैंने ये कहा नहीं। नेक्स्ट थिंग, दूसरी थिंग कि वहाँ पे हम मध्यम पुरुष नहीं देखते, इसलिए भी मैंने नहीं कहा, और द्विवचन का भी उपयोग हम यहाँ पे नहीं करते। सो आई डेंट टेल यू द टेबल, बट जेलन जी थैंक यू वेरी मच। This is the way you can remember these things, okay. I'll try to make a table which will be useful for you, and I'll send it to you today evening, so that it will be clear for all of you, okay. Fine, so I hope this is clear to all of you. Yes, so I'll just stop sharing this and I'll share another document. Is that fine? Fine. Fine. Yeah, I'll share one more document. Yes, so do you all want to continue with the with another document, or shall we do a shloka or a song, something? What do you all suggest? You can just put it in the chat box and then I'll start. Both? Okay, okay, okay. Okay, fine. So we'll see a shloka, okay. थोड़ा सा जो हम रोज देख सकते हैं, what we can apply in our lives, ठीक है। Okay. फाइन, ओके। सो श्लोका ऐसा है, लिख कर भेजूंगी, मैंने लिखा नहीं है, दिस इज समथिंग इंस्टेंट, ओके। सो श्लोका एक ऐसा है, अग्न्याधाने गवाम गोष्ठे, देव ब्राह्मण सन्निधौ, भोजने जपकाले च पादुकानाम विसर्जनम, ओके। तो ये श्लोक हमें क्या कहता है, ठीक है। दिस श्लोका से कि अग्न्याधाने, अग्नि का जो स्थान होता है वहाँ, जैसे अगर कहीं यज्ञ चल रहा है, कहीं सेक्रीफाइस चल रहा है, ओके, वहाँ पे, फिर पाकशाला में, ठीक है, या फिर जहाँ पे अग्नि होता है मंदिरों में, या तो फिर रसोई घर में, हाँ ओके, इन द किचन जहाँ पे गैस होता है वहाँ पे। फिर गवाम गोष्ठे, गवाम गोष्ठे इज गाय का घर, गौशाला जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे। फिर देव ब्राह्मण सन्निधो, जहाँ पे देव, जहाँ पे देव हो, जैसे मंदिर हो, हमारे घर का मंदिर हो या तो फिर एक्चुअल मंदिर हो, वहाँ पे ब्राह्मण संधि प्रसन्नित हो, जहाँ पे कोई कार्य चल रहा है देव का, ब्राह्मणों द्वारा अगर कोई यज्ञ चल रहा है तो उस जगह पर नहीं जाना है। भोजने, भोजन करते समय पादुका नहीं पहननी है, पादुका इज चप्पल, ओके, फ्लोटर्स, फुटवेयर इन शॉर्ट। जप काले, जब भी आप जप काल कर रहे हैं, आप पूजा कर रहे हैं, ठीक है, उस टाइम पे, इन सब चीज़ों के समय पे, इन सब जगहों पे या ये कार्य करते समय हमें क्या नहीं करना है, पादुकानम विसर्जनम,
हमारी जो चप्पल होते हैं, हमारी जो पादुकाएं होती है, उसका विसर्जन करना है. ओके, सो दिस इज समथिंग विच वी कैन अप्लाई इन आवर डेली लाइफ्स. यस. ओके. ओके, fine. One more important shlok. Okay. 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 So Agnihotram, Gruham Kshetram, Mitram Bharyam, Sutam Shishum, रिक्तपाणिर न गच्छेत्तु राजानम देवताम गुरुम. ठीक है. तो अग्निहोत्रम, जो ये जो जगह होती है, अग्निहोत्रम, गृहम या क्षेत्रम या मित्रम, भार्याम, सुतम, शिशुम. ठीक है. ये जो सारे जगह है, या जब आप इन लोगों के पास जब जाते हैं, बहुत समय बाद जब आप जाते हैं, उस टाइम पे आपको क्या नहीं करना है. रिक्त पानी, रिक्त इस खाली, पानी को हम हाथ कहते हैं, जिससे हम शादी के टाइम पे पानी ग्रहण हम जो हम सुनते हैं, दैट इज पानी. ठीक है. रिक्त पाणी न गच्छेत्तु, खाली हाथ नहीं जाना है. ठीक है. किन किन लोगों के पास खाली हाथ नहीं जाना है. अग्निहोत्रम. ठीक है. अगर आप कहीं अग्नि के जगह पर जा रहे हैं तब, जैसे किसी आप फंक्शन में जा रहे हैं, चाहे फिर वो शादी ही क्यों ना हो, वहाँ पे भी अग्नि तो होता ही है. फंक्शंस इन शॉर्ट, अब जब हम फंक्शंस में जाते हैं तब. गृहम, हम हमारे खुद के घर जब हम बहुत दिनों के बाद जाते हैं तब. क्षेत्रम, कोई भी किसी और कार्य के लिए जा रहे हैं तब. ठीक है. फिर मित्र को मिलने हम बहुत दिनों के बाद, लंबे समय के बाद जा रहे हैं तब. भार्या, आप अपने भार्या इज बेसिकली पत्नी, पर अगर आप अपने पत्नी या पति किसी को भी बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं तभी भी. सुतम, अपने बेटे को, बेटे को, या शिशुम, छोटे से बालक को, जब जिसका इसका जन्म होता है और आप उसे देखते हैं, देखने जाते हैं उस समय पे. और राजानम, जब आप राजा के पास, जो नृप किंग होता है जो, उनके पास. देवताम, देवता के पास. और गुरु के पास जब भी जाते हैं तब हमें खाली हाथ नहीं जाना है. ठीक है. ओके. सो ये ऐसा श्लोक है विच वी कैन यूज इन डेली आर विच वी कैन अप्लाई इन आर लाइफ्स. ओके. ओके, फाइन. सो Dr. Hirak Joshi ji, I don't know the exact source. This is something which I am reading from my diary, which is at least 7 years old now. I used to learn a shloka from my, from my guru. Okay, when I was in my bachelor's. Okay, so I don't know the proper source. Okay, okay, fine. Yeah, Jilamji, I'll send both the shlokas. Okay. Okay, fine. So I think we'll go ahead now. Okay. Yes, Ravi Ranjan ji, a shlok from Gita is something ki it will take too much time. That is why I'm not going into Gita. Okay, fine. Okay, fine. If you want, I'll just tell you a very cute song for our small children. Okay. Okay. जस्ट 2 लाइन्स. ओके, छोटे छोटे बच्चों के लिए. ओके. ये जो सॉन्ग है ना, वो स्पैरो बोलती, एक छोटी बच्ची है, वो स्पैरो को देखकर कहती है. ठीक है. शी हैज कंप्लेन्स कि मेरे मम्मी पापा तो मतलब कोई भी घर पे नहीं है, एंड आई एम वेरी अलोन एक्सेट्रा. इसलिए वो बच्ची गाती है. और वो स्पैरो कैसे बोलती है वो भी वो बोल के दिखाती है. ठीक है. तो क्या कहती है. चटक चटक रे चटक, च्यू च्यू कूजसी त्वं विहग. ठीक है. विहग इज अ बर्ड. ठीक है. च्यू च्यू कूजसी, आप च्यू च्यू कूजते हो, बोलते हो. ठीक है. त्वं विहग. ठीक है. चटक चटक रे चटक, च्यू च्यू कूजसी त्वं विहग. ऐसा ये सॉन्ग है. पूरा मैं नहीं गा रही हूँ. इट इज जस्ट, इफ यू वांट आई विल सेंड यू द इमेज ऑफ दैट सॉन्ग. ओके. एंड फाइन. ओके, आई विल गो ahead and see the next document which we had to do yesterday. कल हमने देखा था चतुर्थी विभक्ति. ओके. और कथम श्लोक देखे थे. शीघ्रम मंदम सम्यक देखा था. कथम देखा था. सप्तक का राह देखे थे. और वी वर स्टार्टिंग विथ
अव्ययानि. ओके, तो what is अव्ययम? अव्ययम is अव्यय. यय is नाश. अ is नहीं, जिसका कभी भी नाश नहीं होता. दोज आर अव्ययानि, और जिनका कोई भी बंधन नहीं होता. ठीक है, कोई भी किसी भी विभक्ति के यहाँ पे जाओ, किसी भी शब्द से उन्हें हम जोड़ नहीं सकते. ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? अव्यय. वो स्वतंत्र ही रहते हैं. तो विल सी अ स्मॉल क्वेश्चन आंसर्स हम देखेंगे 2-3, और फिर हम आगे जाएंगे. प्रश्न: चित्रे किम किम अस्ति? चित्र में क्या क्या है? ठीक है. उत्तरम: चित्रे संचिका फाइल, मापिका स्केल, लेखनी पेन, फलम फ्रूट च सन्ति. ठीक है, चित्रे संचिका, मापिका, लेखनी, फलम च सन्ति. चित्र में क्या क्या है? संचिका है मतलब फाइल, मापिका, लेखनी, फलम च सन्ति. ठीक है, ये सब चीजें हैं. फिर कन्याकुमारी के गच्छन्ति? कन्याकुमारी को कौन कौन जा रहा है? कन्याकुमारी छात्राः, अध्यापकाः, प्रधानाचार्याः च गच्छन्ति. कन्याकुमारी को छात्र जा रहे हैं, अध्यापक जा रहे हैं, प्रधानाचार्य और प्रधानाचार्य भी जा रहे हैं. फिर किम प्रधानाचार्यः अपि गच्छति? क्या प्रधानाचार्य भी जा रहे हैं? आम, स न केवलम गच्छति अपितु सह एव अस्मान् नयति. सिर्फ वो नहीं जा रहे, परंतु अपि सह, वे ही हम सबको लेकर जा रहे हैं. ठीक है, तो अव्यय कौन कौन से होते हैं? च, अपि, एव, इति, यत्. अब इनका उपयोग क्या होता है, हम इसे कैसे किस जगह पर इसका प्रयोग कर सकते हैं, वो सब हम आगे देख रहे हैं. ओके, च सबसे पहले हम देखेंगे च. तो जब मुझे कहना है रमा पठति, श्यामः पठति, गिरिः पठति. ठीक है, रमा पढ़ती है, श्याम पढ़ता है, गिरी जो है वो पढ़ता है. ठीक है, अब ये तीनों जो है वो तीनों भी क्या क्रिया कर रहे हैं? पढ़ने की क्रिया. ठीक है, तो पढ़ने की क्रिया जो कर रहे हैं तीनों भी. तो मुझे अगर इसको एक सेंटेंस बनाना है तो मैं एंड जिसको हम कहते हैं उसकी जगह पे हम च का उपयोग करते हैं. वैसे च के और भी उपयोग है, बट एक उपयोग हम एंड के और से भी करते हैं, या तो फिर समुच्चय जब होता है, एकत्रीकरण जब होता है, तभी भी हम च का उपयोग करते हैं. जैसे रमा श्यामः गिरिः च पठन्ति. ठीक है, जैसे रमा, श्याम और गिरी पढ़ते हैं. ओके, आई होप दिस सेंटेंस इज क्लियर. आगे देखेंगे. अत्र शिशवः, बालाः, युवकाः, युवत्यः च सन्ति. यहाँ पर शिशु, बालक, युवक, युवती है. ठीक है, ये सारे भी है. तो मैं कैसे कहूंगी इसे? अत्र शिशवः, बालक का, जैसे ये एक सेंटेंस हो गया. हमने यहाँ पे च का सरस्वती च नद्यः मिलन्ति. प्रयाग में गंगा, यमुना, सरस्वती ये सारी नदियां मिलती है. अस्माकं परीक्षा सोमवासरे मंगलवासरे च अस्ति. हमारी परीक्षा सोमवार को और मंगलवार को है. लतायाः, विमलायाः च कक्षा कुत्र प्रचलति? लता और विमला की कक्षा कहाँ चल रही है? ओके, फाइन. एम आई क्लियर विद दिस? ओके, नाउ अब हम देखेंगे कि what are the things we need to remember here. अवधेयम, things to be noted. च इति अव्ययस्य प्रयोगः. च इस अव्यय का जो प्रयोग है वह समुच्चयः, समुच्चय के अर्थ में होता है. इति अर्थे भवति. ठीक है, फिर च इति अव्ययस्य योजनम अन्ते भवति.
ठीक है। च इति अव्ययस्य योजनम अन्ते भवति, ठीक है। च यह जो अव्यय है इसका जो इसको हम कहाँ जोड़ेंगे, अंत में जोड़ेंगे, जैसे हमने देखा है। शिशवः बालकाः बालाः युवाः युवत्यः च सन्ति, वैसे, ठीक है। उदाहरण है यथा आम्रम कदलीफलम च, कदलीफल इज केला, बनाना, ओके। आम्रम कदलीफलम च, माता पिता बालाः च गच्छन्ति, ठीक है। ओके, I hope this is clear. We will see a few exercises over here now. Okay, जैसे च इति अव्ययम प्रयुज्य वाक्यानि पुनः लिखन्तु। हम यहाँ पे हमें क्या करना है, च का उपयोग करके ये वाक्य फिर से लिखने हैं, हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। मोहनः एग्जाम्पल है, मोहनः श्यामः गिरिधरः कृष्णस्य अन्यानि नामानि सन्ति। मोहन श्याम गिरिधर ऐसे कृष्ण के अलग और भी अन्य नाम है, तो उसको हम च कैसे लगाएंगे, मोहनः श्यामः गिरिधरः च कृष्णस्य अन्यानि नामानि सन्ति, ठीक है। वो उनके जो और अलग अलग अन्य नाम है वो कह के फिर च लगाकर आगे का वाक्य लिखा है। दूसरा वाक्य क्या है, पिता माता पितामहः अत्र उपविशन्ति। ओके, who would like to try this? Akshit ji, would you like to try this? Yes, ma'am. Pita Mata. Wait, ma'am. Pita Mata च पितामह अत्र उपविशन्ति. हाँ, अब पिता और माता आपको पता है, पितामह दादाजी होता है, ठीक है। तो ये तीनों अत्र उपविशन्ति, तो हम च कहाँ लगाएंगे, पिता माता के बाद पिता माता च पितामह अत्र उपविशन्ति। पिता माता पितामह च अत्र उपविशन्ति, ये तीनों भी यहाँ बैठते हैं। ओके मैम। हाँ, जैसे ऊपर हमने पहले एग्जांपल में देखा, मोहनः श्यामः गिरिधरः च कृष्णस्य अन्यानि नामानि सन्ति, मतलब तीनों जो चीजें थी, तीनों जो नाम थे वो पहले लिए, फिर हमने च लगाया और फिर आगे का वाक्य वैसे। कैन यू ट्राई इट वंस? यस मैम। या, पिता माता पितामह च अत्र उपविशन्ति। अस्तु, धन्यवादः, उत्तमम्। ओके, थर्ड वन, ओके। काकः पिकः शुकः आकाशे सन्ति, ठीक है। काकः कौवा, पिकः हाँ, पिकः इज ऑल्सो काकः कृष्णः, पिकः कृष्णः, इट्स पिजन, ओके। काकः पिकः शुकः इज पैरोट, पैरट, ओके। और आकाशे सन्ति, ठीक है। तो यस गौरी जी, प्लीज ट्राई। मैम, इट्स काकः पीकः शुकः च आकाशे सन्ति। उत्तमम् उत्तमम्, सम्यक्, धन्यवादः। धन्यवादः। ओके, सः प्रथमं, त्वं द्वितीयम्, अहं तृतीयं स्थानं प्राप्तवन्तः। ओके, यस, अनुराग जी, वुड यू लाइक टू ट्राई दिस? Hello, ma'am. Yes, This ma'am. one is सः प्रथमं त्वं द्वितीयम् अहं तृतीयं च स्थानं प्राप्तवन्तः. उत्तमं, सत्यं, धन्यवादः। सः प्रथमं, त्वं द्वितीयम्, अहं तृतीयं च स्थानं प्राप्तवन्तः। धन्यवादः महोदय। अस्तु, तदनन्तरं सुमेधा लिखति, सुलेखा लिखति, सुरभिः लिखति, ठीक है। तो उसका आंसर क्या होगा, सुमेधा सुलेखा सुरभिः च लिखन्ति, ठीक है। वैसे ही बालकाः क्रीडन्ति, बालिकाः क्रीडन्ति, तरुणाः क्रीडन्ति, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, भरत जी, आर यू देयर, वुड यू लाइक टू ट्राई दिस? Fine. Bhaskar ji, are you there? Would you like to try this? Okay. Can I try, ma'am? Yes, Dharmanshu ji, please try. बालकाः बालिकाः तरुणाः च क्रीडन्ति. Yes, उत्तमं, धन्यवादः। बालकाः बालिकाः तरुणाः च क्रीडन्ति, ओके, धन्यवादः महोदय, ठीक है।
अस्तु, सः मम कार्यं करोति, सः तव कार्यं करोति. ओके, आई विल से दिस फॉर यू. सः मम तव च कार्यं करोति. ठीक है. ओके, फाइन. इदं पुस्तकं मह्यं यच्छतु, इदं पुस्तकं तस्मै यच्छतु. ओके, द डिफिकल्ट वन्स आई विल से इट फॉर यू. इदं पुस्तकं मह्यं यच्छतु. या, इदं पुस्तकं मह्यं यच्छतु, तस्मै यच्छतु च. Okay, this is a bit different. Okay, that is why I didn't ask it to any one of you. Okay, fine. Okay, so this one, धूलिः आसन्दे अस्ति, कपाटिकायाम् अस्ति, उत्पीठिकायाम् अस्ति. So okay, Dushyant Singh ji, would you like to try this? Yes. Yeah. धूलिः आसन्दे कपाटिकायाम् उत्पीठिकायां च अस्ति. अस्ति, उत्तमम. ओके, धूलिः इज धूल. कहाँ कहाँ है? आसन्दे, कपाटिकायां एंड उत्पीठिकायां. धन्यवादः. अस्तु. ओके, मित्राणि बेंगलूरतः आगतानि, देहलीतः आगतानि, शिमलातः आगतानि. ठीक है. इंदु जी, वुड यू लाइक टू ट्राई दिस? Okay. Jailam ji, would you like to try this? हाँ जी मैम. मित्राणि बेंगलुरुतः, देहलीतः, शिमलातः च आगतानि. उत्तमम, उत्तमम. धन्यवादः. अस्तु. ठीक है. Okay, fine. Okay, so now we will see the second अव्ययी, that is अपि. केवलम तेन वयमपि गच्छामः. सिर्फ वो नहीं, हम भी जाएंगे. ठीक है, हम भी. वयम अपि. ओके, केवलम तेन वयम अपि गच्छामः. ठीक है. ज्येष्ठाः अपि फलानि खादन्ति. ज्येष्ठ लोग जो होते हैं वे भी फल खाते हैं. ठीक है. वैसे ही मम पुस्तकम अपि अत्र अस्ति. मेरी पुस्तक भी, मेरा पुस्तक भी यहाँ पर है. ठीक है, भी. ओके, यहाँ पे याद रखने जैसी चीज क्या है? अपि इति अव्ययस्य प्रयोगः. अपि यह जो अव्यय है उसका प्रयोग हम सातों विभक्ति में करते हैं. ठीक है, सातों विभक्ति में वैसे ही यूज कर सकते हैं हम अपि. ओके, फाइन. ओके, द थर्ड वन इज एव. एव ही. ठीक है. एव का प्रयोग हम क्यों करते हैं पता है? निश्चय के रूप में. मैं तो ये करूंगी ही. ठीक है, ये गुजराती में हूँ तो आऊ करी सज. ठीक है. फिर आई ओके, इन मराठी मी असं करणारच. ओके, जो च है, हूँ आऊ करी सज या मैं ये करूंगी ही, उसके लिए हम एव का उपयोग संस्कृत में करते हैं. एग्जाम्पल, बालः एव दुग्धम इच्छति. पिता न, बालक को ही दूध चाहिए, पिता को नहीं चाहिए. ठीक है. फिर ज्ञानम एव अस्माकं वास्तविकम नेत्रम. ज्ञान जो है, नॉलेज है, वही हमारा वास्तविक नेत्र है. ओके. फिर है जनाः संस्कृतेन संभाषणं कुर्वन्ति एव. लोग है, जनाः लोग है, वो संस्कृत के द्वारा संभाषण करते ही है. ओके, यहाँ पे ध्यान रखने जैसी चीजें क्या है? एव इति अव्ययस्य प्रयोगः निश्चयः इत्यर्थः क्रियते. ठीक है, एव जो है इस अव्यय का प्रयोग निश्चय के अर्थ में करते हैं. ठीक है. फिर है यस, फिर एव इति अव्ययस्य प्रयोगः सप्तभिः विभक्तिभिः अपि शक्यः. एव का भी प्रयोग सारी विभक्तियों में होता है. ऐसा कुछ नहीं है कि हम कोई तो एक स्पेसिफिक विभक्ति में कर सकते हैं उसका प्रयोग. ठीक है. We'll see a few questions, 2 to 3 questions. Okay. भवान, हाँ, ओके. प्रतीक सिंह जी, अपि means भी. Yes, true. ओके, उदाहरणानुसारं वाक्यानि पुनः लिखन्तु. यथा भवान अधुना गृहं गमिष्यति, भवान कार्यालयं न गमिष्यति
इसके लिए हम एव का प्रयोग कैसे करेंगे? भवान अधुना गृहम एव गमिष्यति कार्यालयम न। भवान अधुना गृहम एव गमिष्यति कार्यालयम न। आप अभी घर को ही जाएंगे, कार्यालय को नहीं। सेकंड, वयम सर्वे भोजनम करिष्यामः वयम मधुरम न खादिष्यामः। ठीक है, वयम सर्वे भोजनम एव करिष्यामः मधुरम न खादिष्यामः। ओके, हम वयम का उपयोग 2 बार नहीं करेंगे। ओके, सो ये जो सारे अव्ययानी है ना, उसको हम कनेक्टर्स के रूप में भी देख सकते हैं। दीज कनेक्ट 2 और 3 सेंटेंसेस टुगेदर। ओके, ऐसे हम इसे देख सकते हैं। ताहा विद्यालयम गच्छन्ति, ताहा अन्यत्र न गच्छन्ति। केवल जी, वुड यू लाइक टू ट्राई दिस? यस मैम। या, ताः विद्यालयं गच्छन्ति एवं थोड़ा सा चेंज, ताहा विद्यालयम एव गच्छन्ति न अन्यत्र। ताः विद्यालयम् एवं गच्छन्ति अन्यत्र न। अन्यत्र न गच्छति हाँ गच्छन्ति। हाँ, अब यहाँ पे ध्यान रखने की चीज क्या है कि ताहा ताहा 2 बार यूज हुआ है। बोथ द सेंटेंसेस हैव ताहा ताहा, बोथ द सेंटेंसेस हैव गच्छन्ति गच्छन्ति, मतलब क्रियापद जो है इट इज सेम, और ताहा ताहा वो भी सेम ही है प्रोनाउन। ओके, सो हम क्या करेंगे? ताहा विद्यालयम एव गच्छन्ति, वो सारी जो लड़कियां हैं वो सारी विद्यालय को ही जाती है और कहीं नहीं जाती। ठीक है, ताहा विद्यालयम एव गच्छन्ति अन्यत्र न। ओके, पुस्तकालये पुस्तकानि सन्ति, पुस्तकालये उत्तर पुस्तकानि न सन्ति। नीरजा जी, वुड यू लाइक टू ट्राई दिस? यस नीरजा जी। ओके फाइन। Pratik Singh ji, are you there? Yes, ma'am. Yes. Ma'am, it will be pustakalaya ev pustakani santi na पुस्तकालय पुस्तकानि न। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, पुस्तकालये एव पुस्तकानि सन्ति न उत्तर पुस्तकानि। ठीक है, यू आर एब्सोल्युटली राइट। सिर्फ दूसरी बार हमें पुस्तकालय नहीं बोलना था। एब्सोल्युटली राइट, उत्तम। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है, नीचे जो है वो भी हम कुछ देख लेंगे। ठीक है, सिंहः गर्जति शुकः न। हम क्या कहेंगे? सिंहः एव गर्जति शुकः न। ठीक है, अब हम देखेंगे। ओके, पूजन जी, वुड यू लाइक टू ट्राई दिस? वृक्षः फलति काष्ठं न। ओके फाइन। yes, रुचिरा जी, would you like to try this? Yes ma'am. Yeah. वृक्षः एव फलति काष्ठं न। उत्तमम उत्तमम, धन्यवादः। ठीक है, काष्ठम इज लकड़ी, कटी हुई लकड़ी नहीं उगती है, वृक्ष ही उगता है। ठीक है, सज्जनः उपकारं करोति मूर्खः न। ओके, शौर्यकांत जी, would you like to try this? Yes ma'am. Yeah. सज्जनः एव उपकारं करोति मूर्खः न। उत्तमम उत्तमम, सम्यक, धन्यवादः। ठीक है, धन्यवाद। हंसः तरति मूषकः चूहा न। ठीक है, श्याम जी, वुड यू लाइक टू ट्राई दिस? यस, हंसः एव तरति मूषकः न। उत्तमम उत्तमम, मूषकः न। धन्यवादः। नेक्स्ट वन इज मयूरः नृत्यति शुकः न। अरे शुनकः न, शुनकः इज अ डॉग। ठीक है, श्वानः, शुनकः, कुक्कुरः, ये सारे भी नाम डॉग के ही है। ठीक है, मयूरः नृत्यति शुनकः न। सुजना जी, वुड यू लाइक टू ट्राई दिस? यस मैम। मयूरः एव, मयूरः एव नृत्यति शुनकः न। सुजना जी? हाँ, ओके, अस्तु, धन्यवादः। धन्यवादः। ओके, तन्मय जी, वुड यू लाइक टू ट्राई दिस? नदी वहति सागरः न। यस मैम।
नदी एव वहति न सागरः। सागरः न। सागरः न। जी धन्यवाद। ठीक है, ओके। सो ऐसा नहीं है कि नदी ही बहती है, सागर नहीं। ओके फाइन, वी विल, ओके फाइन। अंशुल जी। Hello. Yes, Anshul ji. Yeah. Yeah. Okay. Okay. Yeah. How Are much? we done? Actually, we have more two things, but it will take more 10 minutes. So, shall we stop for today? As you say. Yeah. Okay, fine. It's already 1:45. Arre, 12:45. Ji. Okay, fine. We will stop today. We'll continue with these two topics tomorrow. That's fine. Okay. 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 So there are a couple of announcements I have to make. First of all, whatever content files, PDF and Word files we have shared with the participants. Sanitha ji, meanwhile, just keep going through the questions there are coming. Yeah. So whatever we have shared with you, all of these are made, the previous ones are made by Sanitha ji itself, all of the content. So we request you not to share it with others, though there was a logo also earlier, but then we removed it. But anyhow, so we request you not to share this material with anyone else, because it is really, it is an organization which is helping us with almost, with expecting nothing from our side, but they only just expect some loyalty, because they are about to kind of go begin online courses for all of the as I had discussed in the while starting of. Can we stop the recording now, Sanitha ji? Ji. Yeah. So all of the school going students